हमारे बीच में डॉक्टर अचल पांड्या जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने वक्त निकाला है हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका टॉक शुरू हो। प्लीज़ मंच पर आएँ, आइए। रेनू मैम, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मंच पे आएँ और सर का फूलों से स्वागत किया जाए। थैंक यू। मनीष सर, प्लीज़ मंच पर आएँ। सर, स्टेज आपका। So Achal Pandya sir is currently Professor, Head of Conservation Department at Indira Gandhi National Center for Arts. Before joining IGNC, Achal sir had taught Master's Degree Program at National Museum Institute of History and Art, Conservation and Museology of New Delhi. Achal sir is doctorate and holds Master's Degree in Conservation and Chemistry. Achal sir has followed the International Institute of Conservation of Historic and Artistic World, and he is also the Vice Chair of the Directory Board of International Councils of Museum Committee of Conservation, ICCOM. Thank you so much, sir. Thank you very much for inviting me for this event. I'm really first of all, I would like to congratulate to this International Art Carnival by Delhi College of Art. I'm really impressed the way you have transformed the venue, Lalit Kala Academy, and it is really a pleasure to be with the artists, art and budding artists together. My topic is little away from art per se, but it is more about the deterioration of art. So, as you know, whatever is created, the day you create it, it starts to deteriorate. And as when I'm told that I'm an art conservator, so art conservator has to delay that process of degradation. That's what we do. And if you will go into details at what is a work of art, then work of art is not just that you have created a beautiful thing or you have created something which is really very giving a great message. It is definitely a work of art, but the work of art becomes a work of art when it lasts for long, which is not really tentative. You can make you can say that no, these days you do so much of installations and public art, things like that, but work of art is when things are created in such a manner that the material that, for example, our great sculptors of India, if you will go to Ellora, the temple that they have created, it's a work of art, because after 1500 years or 1600 years, it is still there, and it speaks in the same manner as it used to speak around 16 years back. That is why we call it a work of art. Or what Michelangelo has painted. I was going through the book which was lying here, that you people have also visited Italy, Spain, things like that. So Michelangelo that he had created is a work of art, because today also you can appreciate it in the same manner than it was. So it really need not be a tentative thing. It may be a beautiful thing, but tentative is but again it's a matter of debate which you can debate later. So here I am going to tell you about the cultural heritage is always at risk, and if we identify those risks, we will be able to protect it for more period. I cannot say that
I am giving you a guarantee that something which has been created, it becomes a nashwar. No. For the tangible cultural heritage, the heritage which can be touched, which is created, it has to degrade. Like Michelangelo paintings are also degrading, frescoes are degrading, our Ellora is also degrading, Taj Mahal is also degrading. All these monuments and cultural heritage paintings are degrading. But if we, as a custodian of this cultural heritage, we need to take some steps so that the life of these cultural objects, it increases. So how do I increase the life? So for that I need to know that why it degrades. So here I will like to explain you what are the factors of deterioration, the why a cultural heritage, what are the aggressors which deteriorate my cultural property. Next please. You see, the aggressors have been classified into different manner. So one is natural aggressors. You can see the green ones are natural aggressors, and the red ones are human aggressors, that the people like us, the public. You see, this is an art gallery, so people are also moving around this, so they also help, they also lead to degradation of artwork. Then there are certain aggressors which act in a manner that they degrade my artwork or my cultural property immediately, and they are drastic. And the other one are slow and cumulative. You can see that where every day when I am walking or I am touching a painting, I am going and touching a painting, so it will not degrade in one single day, but over a period of time, maybe 2 years, 3 years, all the dust, dirt which is there in my hand gets transferred into the painting. So that's I call it slow and cumulative. Dheere dheere, and whatever is happening today will be added tomorrow. Tomorrow thing will be added into day after tomorrow degradation. So that's we call it as slow and cumulative. Next, so you all know that these are the natural thing. If earthquake comes, it will lead to a lot of degradation. So I will ask you a very simple question. So please feel free to just respond. That if in this place, you see all around you, if there is an earthquake and things they topple down, which type of object will get damaged the most? Just and glassware, ceramic, they will think, but paintings, maybe they will get this little bit of damage and all, but not completely. And if there is a fire, then paintings will be burned completely and sculptures will remain. So it also depends, the degradation and aggressors depends on type of cultural property that we have. So that's why when I say that why I need to know what are the aggressors, so and what are the risks. The risks on a, for example, in the library, on books due to earthquake is less, but with a fire it is more. Water it is more, because the moment there is a flooding and my books are in water for 2 days, and when water will recede, immediately what will come? Fungus will come on the books, and then I will spend all my entire life, my entire life in conserving the books, which becomes an impossible task. So you have earthquake, volcanic eruption, storm, hurricane, lightning, hail, flood, tidal waves, and fire. There are forest fires, things like that. Next please. And then natural aggressors are erosion, that every day when in Mahabalipuram, for example, everyone knows about Mahabalipuram. It's a shore temple in Tamil Nadu. So you have got these salt laden winds, because Mahabali temple, the name itself is shore temple. So
the salt laden winds will come, they will strike the monument, and they are doing it every day for last 1000 years. So what will happen is that wherever they are striking every day, my stone gets eroded. That is known as erosion. Then you have got inappropriate temperature and dissolved salts. So what do you mean by inappropriate temperature? And there is one inappropriate relative humidity. What do you think about this art gallery? Whether it has got a appropriate temperature or inappropriate temperature, or appropriate relative humidity or inappropriate relative humidity. What do you say about this art gallery, 3 floors art gallery? Huh? Appropriate the temperature and How do you say that they are appropriate? So they are maintained by air condition. So when you enter in the morning, is the air condition on? During night it is on. So it is not an appropriate relative humidity. It is not appropriate temperature. It is appropriate temperature and relative humidity for us, for visitors. So this air conditioning is for visitors, not for artworks. So we have to be very clear, because if it was for artworks, it has to be 24 hours. Got it? It's clear. So if you don't go by that, by such things, that relative humidity, and also all these artworks maybe have come from other studios, from artist studios and all, where maybe it is not controlled. Maybe it is not, where the climate is not controlled, right? No artist keeps his artworks in a climate controlled atmosphere. Even Hussain Saab would not have kept his things in climatically controlled things. No one, it's very difficult to afford that. So that when I am saying inappropriate, that is why I have used the word appropriate and inappropriate in this. What do you mean by appropriate is that we all know that if there is a high relative humidity, what will happen is that there will be fungus on the object. You would all have noticed, especially on the acrylic painting, the fungus, it grows. If you will go to Goa, you will see that lot of fungal problem on artwork is there. But fungus does not grow only because of the relative humidity. If that was the situation, then in Arunachal Pradesh you would not have found any organic object. Arunachal Pradesh, what is that? If you open the window, one window of a museum, the entire cloud enters into the building, and the other from the other window, that cloud it goes out. This is a situation that happens in Arunachal Pradesh. But you still have artifacts there, and artifacts are without fungus, because high relative humidity is not the only factor for growth of fungus. Fungus will only grow when you have got stagnant air, you have got a temperature which is conducive to growth of fungus. What is that appropriate temperature for growth of fungus? Is 30 to 40 degree. So if your temperature is 30 to 40 degree, it will be an inappropriate temperature in a museum. Along with that, you should have stagnant air. So if your air is moving, then you will not have fungus. So I am just telling you that if you have artifacts in your house or in your studios or in your college, wherever you are working, so if you want to keep your artifacts away from fungus, the easiest and cheapest method is to circulate the air. फैन चला दीजिए, स्टेबल फैन चला दीजिए, पेडेस्टल फैन चला दीजिए, हवा लगाने वाली जो बात होती है वो करना है. So that is appropriate and inappropriate. It is not about that maintaining a 45% relative humidity all the time. It's not feasible. It is not really feasible. It is feasible, but it costs a lot of money. We all, whenever we see our electricity bill in summers, we all cry. Why? Because even though we are using it only for 8 hours,
or 3 hours, it from winters 600 rupees will immediately become 10,000 rupees. So imagine if you have to run air condition the whole 365 days, what will be the electricity cost for such a 3 stories buildings. Then you have got corrosion agents, that then corrosion agents will act on metals. Pollution, we all know, light, the light which is falling directly on the paintings, it has a deteriorating effects. Microorganisms such as fungus, bacteria, vegetation, you see that there are so many times of our monuments have the growth of trees and small plants and all. So I have put them into as natural aggressors. They are not natural aggressors when the size of my plant is only this much, that I can remove it with 2 fingers. But when it takes a form of a tree, then it is not a natural aggressor, it is a professional aggressor. That somebody was not looking after the monument, that is why a small sapling became a big tree. Insects, we all know, they will attack the objects like books, paintings, silverfish and all. Rodents are rats, mouse, और क्या है, स्क्विरल है. छिपकली रोडेंट में नहीं आती. छिपकली नॉर्मली इज नॉट पर से एन अग्रेसर. छिपकली आर्ट वर्क पे चली जाएगी तो उस पर कोई फिजिकल डैमेज हो सकता है, बट छिपकली विल नॉट ईट योर आर्ट वर्क. इन फैक्ट शी माइट ईट द इंसेक्ट्स विच आर डिटोरेटिंग योर आर्ट वर्क. और डस्ट. नेक्स्ट प्लीज. पब्लिक में अब हम आ जाते हैं. नेचुरल थे ना, तो पब्लिक में जब ये वॉर हो रहा है, अभी आज भी कहीं ना कहीं वॉर हो रहा होगा, है, तो जब वॉर में जब मिसाइल गिरती है तो उसको ये नहीं पता कि मैं हॉस्पिटल पे गिर रही हूँ या मैं किसी सोल्जर्स के ठिकाने पे गिर रही हूँ या मैं म्यूज़ियम पे गिर रही हूँ. तो तब जो भी डैमेज होता है वो इमीडिएट और ड्रास्टिक होता है. उसमें भूकंप भी आता है, पानी की लाइनें भी टूटती हैं, सारे तरीके के डैमेज होते हैं. उसी तरीके से टेररिस्ट अटैक है, फायर है, पब्लिक वर्क्स हैं, डीप प्लोइंग, इलीगल एक्सकवेशन, अर्बन डेवलपमेंट, फेनेटिसिज्म, वेंडलिज्म. अभी कोई जाके इस पे कुछ लिख दे पेंटिंग के ऊपर, जो होता है हम देखते हैं बड़ी बड़ी पेंटिंग पे. रेम्ब्रांड की पेंटिंग पे था, मेरे पास एग्जाम्पल भी है, अगर टाइम होगा तो दिखा दूंगा. थेफ्ट है, ये सब चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट. और पूरी दुनिया में होती हैं, केवल ऐसा नहीं है कि हमारे ही कंट्री में हो रही हैं. और ये दूसरी एब्रेशन कि जानबूझकर जो पब्लिक चलते चलते, मैंने बताया ना, टच करते हुए चले गए आप, वाइब्रेशंस चलते ऐसे चलते चलते, इग्नोरेंस, ग्राफिटी और ट्रेजर हंटिंग. ये तो हो गई पब्लिक. ऊपर हो गया पूरा नेचुरल. अब ये हम लोग प्रोफेशनल जो कंजर्वेटर्स, म्यूजियोलॉजिस्ट, गैलरी ओनर्स, हम लोगों के कारण जो डैमेजेस होते हैं वो ये हैं. नेक्स्ट. और सबसे ज़्यादा डैमेजेस प्रोफेशनल्स के कारण ही होते हैं. नेक्स्ट प्लीज. तो वो क्यों होते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आप लोग अब यहाँ पर बैठे हैं, आप कल प्रोफेशनल्स बनेंगे, तो आपको अगर ये सब चीज़ें डैमेजेस नहीं करने हैं तो उसमें क्या, इन चीज़ों की लैक नहीं होनी चाहिए. अगर प्रोफेशनल्स को लैक ऑफ कल्चरल प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं ना मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैं आर्ट वर्क क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, इसका अगर मैंने अपने मिशन डॉक्यूमेंट में नहीं डाला हुआ कि मेरे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द आर्ट वर्क्स. अगर आर्ट वर्क का यूज़ है कि उसको यूज़ करना और वो ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा फिर मैं आई विल let it go in the hands of everyone, each and everyone. But if my mission is to preserve my artworks, तो मुझे I have to make arrangements for that. And their arrangements are not necessarily expensive. Arrangements are that you have to be conscious that
artworks are important, I have to create a space for them as I create space for myself. Then if you have a lack of legislative framework, that there is no law if an artwork is damaged intentionally by someone, then you cannot do anything. It is damaged, it is damaged. If there is no administrative framework, if there is no respect, if there is a lack, the person who is looking after the thing, he has no respect for the artwork, then also your artwork, that is a very bad aggressor. If you are not aware, if you don't have an awareness, आपके पास मोटिवेशन नहीं है कि मैं इस आर्ट को क्यों बचा रहा हूँ, उसकी मोटिवेशन भी होनी ज़रूरी है. और जो भी किसी के घर में भी अगर आर्ट है, अगर आप 3 बेडरूम के कमरे में रह रहे हैं या 10 कमरे के मकान में रह रहे हैं, तो जो चीज़ दीवार पर आ गई वो तो बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन जो चीज़ आपको संभाल के रखनी है वो कभी जिसको घर में आर्ट का शौक़ नहीं है और वो डिसीजन मेकर है, तो आपको हर समय कहेगा इसको यहाँ से उठा के वहाँ रखो, इसको वहाँ से उठा के यहाँ रखो, ये इसमें आज मेरे घर में कोई आने वाला है, मेरा कमरा ख़राब कर दिया. तो ये एक आसान काम नहीं है. तो ट्रेनिंग, यू नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर प्रोटेक्टिंग योर आर्ट वर्क्स. सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो चोरी हो जाएगी. चॉइस नहीं है आपके पास प्रोग्राम्स नहीं है कि मैंने आर्ट तो इकट्ठी कर ली, अब मुझे इससे करना क्या है. जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है ना आज की डेट में यहाँ पर, तो इस प्रोग्राम में मैं एग्जिबिट कर सकता हूँ, उस आर्ट के ऊपर बोल सकता हूँ, मैं सेमिनार करा सकता हूँ, मैं एग्जीबिशन, कई तरीके की एग्जीबिशंस लगा सकता हूँ एक आर्ट वर्क से. एक आर्ट वर्क पे मैं एग्जीबिशन लगा सकता हूँ अबाउट द आर्टिस्ट, एक में टाइप ऑफ द आर्ट, एक में हाउ टू प्रोटेक्ट आर्ट. इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. देन अगर आप आपस में बात नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू हैव लैक ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, इफ़ यू हैव लैक ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, देन ऑल्सो इज़ अ वेरी बिग एग्रेसर. और लैक ऑफ कंट्रोल, अगर कोई कंट्रोल ही नहीं है इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिसके पास आर्ट वर्क्स हैं, तो आपकी आर्ट ख़राब हो सकती है. नेक्स्ट प्लीज़. और आपने अगर इन कामों को गलत किया, अब मैं क्योंकि म्यूज़ियम वर्ल्ड से आता हूँ तो मैंने आपको दिया है इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन. अगर आपने एक्सकेवेशन के दौरान एक्सकेवेट ढंग से नहीं किया तो आपने ऑब्जेक्ट्स को निकालते निकालते ही तोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सकेवेशन. फिर उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप एक हाथ में 4 टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं और ऑब्जेक्ट गिर गया, तो ये भूकंप से भी ज़्यादा नालायक वाला डैमेज है. इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग हमने ढंग से नहीं बनाई, तब हम आर्ट वर्क ख़राब कर सकते हैं कि जिस दिन हमने बनाई तो जहाँ पर हमने आर्ट वर्क रखा वहीं पर ही पानी आ गया, इकट्ठा हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइप्स एंड वायर्स, वो अगर ढंग से नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है. हमने देखा ही है अपने यहाँ पर 2013 में पूरा का पूरा जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है दिल्ली का, इट वॉज गटेड टू फायर. Not even 1% or 2% objects we were able to rescue. मैंने बताया ना, drastic and immediate. डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है. आप अगर अपनी ओनरशिप ही ना सिद्ध कर पाएँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा है, तो वो होता है डॉक्यूमेंटेशन. आपको अपने ऑब्जेक्ट्स की इन्वेंट्री बनाना, उसको डॉक्यूमेंट करना. हैंडलिंग, आपको हैंडल करना नहीं आता आर्ट वर्क को, कि आपने ऐसे टेराकोटा उठाया, उसकी हैंडल आपके हाथ में आ गया और टेराकोटा नीचे गिर गया. आपने स्टोरेज ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं किया. आपने जो फर्नीचर चूज़ किया, आपने वो रस्टेड फर्नीचर यूज़ किया और आपका ग्राफिक्स का कोई आपने डायरेक्टली उसके ऊपर रख दिया, तो आपके सारे जो स्टेन्स हैं, करोजन स्टेन्स जो हैं, वो सारे आपके आर्ट वर्क पे ट्रांसफ़र हो गए. एग्जीबिशन आपने ढंग से नहीं किया, लाइट खूब डाल दी ऑब्जेक्ट. एक अच्छी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. जो भारत मंडपम में जो नटराज लगे हैं,
इसके बारे में है ये। नेक्स्ट ये हमें सबको मालूम है कि ये भगवान शिव हैं, जो कि लॉर्ड ऑफ डांस जिनको हम लोग कहते हैं, वो इसमें दिखाए गए। नेक्स्ट, ये हमारे नाट्य शास्त्र में, शिल्प शास्त्र में, सब जगह इसका स्कल्पचर्स के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो हैं। और जो साम्राज्य था उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन आर्ट इज देयर ब्रॉन्जेस, उनकी जो कांस्य की प्रतिमाएं हैं जो कि 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक बनाई। नेक्स्ट, ये लॉर्ड शिवा's डांस नोन एज डांस ऑफ ब्लिस और तांडवा सिंबलाइजेज द कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। Lord Shiva's four arms signify his various powers and roles, with each arm representing a different aspect. The dwarf, नीचे जो अपस मार्ग है, under his foot symbolizes ignorance and ego, which Lord Shiva transcends through his divine dance. The ring of fire पूरा है, enveloping Lord Shiva signifies the universe and cyclic nature of life, representing the constant process of creation and destruction. तो अब ये iconography and composition. Lord Shiva is depicted in a dynamic dance posture known as Tandava, which exudes energy and vitality. मैंने बता दिए। Surrounding Lord Shiva is a ring, ये भी होगा। Next, और ये इसका जो इन्फ्लुएंस है, अगर आप पढ़ेंगे नटराज के बारे में अलग अलग जगह पर, तो आपको मिलेगा कि आपने इनका नाम सुना है, रेनोवार का, रेनवार आर्टिस्ट। और थिंकर किसने बनाई है आपको मालूम है? आर्टिस्ट एक है ना, रोदें का है। तो रोदें की इंस्पिरेशन वाज नटराज। रोदें जो इतना खुद अपने आप में इतना बड़ा स्कल्प्टर माना जाता है, फ्रेंच स्कल्प्टर है, उसकी अपनी जो इंस्पिरेशन है वो कह रहा है कि समथिंग एज ब्यूटीफुल एज नटराजा है कैन बी क्रिएटेड इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। कि वो कह रहा है कि इसमें जो बिल्कुल पीस है, लेकिन साथ ही साथ उसमें इतना मूवमेंट है, ये इस तरीके की आइकोनोग्राफी बनाना कोई बहुत आसान बात नहीं है। तो एंड नटराज इज़ इंटरनेशनली नोन। आप डालेंगे तो आपको टाओ ऑफ फिजिक्स के जो राइटर हैं, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट नटराजा। और जो सर्न में जो गॉड पार्टिकल जहाँ पर बना है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उसके बाहर नटराज की मूर्ति लगी है। तो नटराज इज़ सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, अब इसका जो प्रोसेस है, मैं इस पे आ रहा हूँ एज ए कंजर्वेटर। ये तो आपको मैंने एक बैकग्राउंड बताया था कि ये लॉस्ट वैक्स मेथड से बनता है, जिसको हम लोग आप लोग जानते भी होंगे। कोई भी स्कल्पचर बनाना है तो उसके लिए आप पहले वैक्स मॉडल बनाते हैं, उसके ऊपर आप उसी से मोल्ड बनाते हैं। नेक्स्ट, तो नटराज इज मेड इन लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड इन दी पंचायत टाउन ऑफ स्वामी मलाई। ये वहीं से ही उसी टेक्निक से बना है जिस टेक्निक से चोल पीरियड में बनता था, और उसी समय की जो फैमिली आज तक चली हुई आ रही है लीनिएज में, उन्हीं ने बनाया है। तो स्वामी मलाई कुंभकोणम के पास एक छोटा सा गांव या कस्बा आप कह सकते हैं, जहाँ पर ये इतने बड़े बड़े अच्छे नटराज या दूसरे कांसे की प्रतिमाएं उसी हिसाब से बनती हैं। और इसके जो देव सेना स्थापति जो हैं, उन्होंने इसको, उनसे हमने ये बनवाया था। नेक्स्ट, तो लॉस्ट
wax casting known by various names such as investment casting, precision casting or cire perdue stands as a sophisticated and meticulous process through which an extra replica of an original sculpture is forged. तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का क्या मतलब है? इवन आप पहले जब जो रॉकेट के जो स्क्रूज भी बनाते थे वो भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनते थे, इतना इसमें प्रिसीशन है. जो छोटी सी डांसिंग गर्ल है हरप्पा मोहनजोदाड़ो की, वो भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या सीर पेर्ड्यू या लॉस्ट वैक्स मेथड इस नाम से वो जाना जाता है, उसी से ही बनी हुई है. तो इंडिया को कोई चीज़ पे अगर गर्व हो तो हम मेटलर्जी के, मेटल्स के हम लोग चैम्पियन थे. जो स्टील जो दुनिया में आया वो आया 17th 18th सेंचुरी में, या 19th सेंचुरी में तो प्रोडक्शन शुरू हुई स्टील की ढंग से. हमारे यहाँ पर 1st सेंचुरी BC में स्टील आ गया था जिसको हम लोग वुड स्टील बोलते हैं. तो हम लोग मेटल्स के, और डांसिंग गर्ल की एज क्या है 2500 BC, यानी कि 5000 साल पहले हम लोगों ने लॉस्ट वैक्स मेथड से वी हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ डांसिंग गर्ल. नेक्स्ट, तो ये जो साइज है हमारे नटराज का दैट इज 27 फीट राइट फ्रॉम द पेडेस्टल. ये इसका जो वेट है विच इज अराउंड 18,000 किलोग्राम, 18 मेट्रिक टन. नेक्स्ट, तो ट्रेडिशनल ये अष्ट धातु में बना है. जनरली जो बनते हैं हमारे नटराज वो पंचलोहा के नाम से बनते हैं, लेकिन यहाँ वाला हमने जो बनाया था ये 8 मेटल्स का है. ये उसकी क्वांटिटीज़ हैं. नेक्स्ट, तो पहले आप पृथ्वी के ऊपर स्केच बना लेते हैं और उसके ऊपर एक आयरन का आर्मेचर बनाते हैं. उस आयरन के आर्मेचर के ऊपर आप एक क्ले का मॉडल बनाते हैं. ठीक है, ये क्ले का मॉडल बना. नेक्स्ट, और उस क्ले के मॉडल के ऊपर आप वैक्स मॉडल बनाते हैं. क्योंकि ये हॉलो कास्ट है इसलिए ये इस टेक्निक से बना है. हॉलो कास्ट इसलिए है कि जो भी पूजा के जो नटराज बनते हैं जो टेंपल में लगाए जाते हैं अंदर, वो सब आपके सॉलिड कास्ट होते हैं, और जो बाहर लगाते हैं वो आपके हॉलो कास्ट. तो ये उसके बाद ये इसका वैक्स मॉडल बना. तो अगर आपका वैक्स मॉडल अच्छा नहीं बना तो आपका कभी भी जो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा. तो ये भी स्वामी मलाई में बहुत छोटी सी वर्कशॉप में ये बनाया गया है. नेक्स्ट, उसके बाद ये क्योंकि हमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्थान पे लगाना था और G20 के लिए ये नटराज बन रहे थे, तो वी हैव टू बी केयरफुल दैट आइकोनोग्राफिक थिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग हैज़ टू बी रियली अकॉर्डिंग टू दी शिल्प शास्त्र. तो उसमें ये डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम रिनाउंड भरतनाट्यम डांसर, बेसिकली ही इज़ ए लॉर्ड ऑफ डांस. तो जो शिल्प शास्त्र में लिखा हुआ है वही डांस के लिए चलता है. तो जब नटराज अपनी एक टांग पे खड़े होते हैं ऐसे आप देखेंगे तो ये पोज भरतनाट्यम डांस में भी आता है. तो अच्छा डांसर वही होगा जो फॉल शिवजी के इसमें प्रोपोर्शन में उनकी फॉल होती है ना, हाइट का फॉल हो गया जैसे खड़े हुए, तो वही फॉल अगर अच्छे डांसर का आएगा उतने ही प्रोपोर्शन में उसकी हाइट का भी फॉल होगा तो वो अच्छा भरतनाट्यम डांसर कहलाएगा. ये सब हमारे उसमें लिखा हुआ है. अगर आप इसकी नटराज की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको ये सब मिलेगा. नेक्स्ट, तो ये इतना हमें 20 फुट ऊंची एक मचान लगा के नीचे पड़ा हुआ था, ऊपर से हमने देखा. ये देखो यही बता रही हूँ फॉल.
ये जो राइट में खड़े हैं ये बहुत बड़े कंजर्वेटर हैं, मिस्टर पेरूमल फ्रॉम तंजावुर। ये डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम और ये स्थापति हैं जिन्होंने बनाया है, जो स्कल्प्टर हैं। नेक्स्ट, फिर उन्होंने बताया कि ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उसी समय वैक्स के मॉडल को ठीक किया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि जो भी ठीक होना है वैक्स का मॉडल वो इसी स्टेज पे ठीक हो सकता है। अगर इस समय गलती रह गई तो वो गलती आपकी उसमें भी आएगी। चिजलिंग से बहुत मुश्किल से आप कर पाते हैं। उसके बाद एक ये जो नेक्स्ट लेयर आती है वो एलुवियल सॉइल फ्रॉम कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के पास से जो एलुवियल सॉइल है उसका यहाँ पर लेप लगाया जाता है, तो वो एक सेरेमनी भी होती है। नेक्स्ट, और उसके बाद इसको फिर आप पूरा जो है मड से कवर कर देते हैं। देखिए इस तरीके का जो पूरा जो मॉडल था वैक्स मॉडल वो इस तरीके से कवर हो गया है। नेक्स्ट, फिर ये उसको एक साथ रख, जो छोटे स्कल्पचर्स होते हैं उनको आप वायर से आप बांध सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इतना बड़ा स्कल्पचर था इसको हमने इन एंगल्स से एक साथ रखा। नेक्स्ट, फिर इसके ऊपर हम इसको पकाया जाता है। मिट्टी को पकाते हैं तो क्या बनता है? नहीं, मिट्टी को पकाते हैं तो टेराकोटा बनता है, तो ऑलमोस्ट टेराकोटा ये बन जाता है। नेक्स्ट, ये देखिए। नेक्स्ट, उसके चारों तरफ एक ईंट की दीवार बना के पूरी नीचे से भी पकाना है और ऊपर से भी पकाना है। नेक्स्ट, फिर इसको जब ये पक गया पूरा, इसके बाद इसको आपने बाहर निकाला। नेक्स्ट, और सारी आपने उसकी जो ऊपर की जो मिट्टी थी उसको निकाल दिया। नेक्स्ट, एक सेकंड बैक जाना, इसमें एक स्टेप रहेगा, पीछे 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 2 स्टेप पीछे, एक और स्टेप पीछे, इस एक और स्टेप पीछे जाए, पीछे एक। हाँ, ये जो स्टेप है इसमें एक स्टेप इसमें आया नहीं पूरा। ये जो यहाँ पर रनर्स लगे हुए हैं इनसे आपने मोल्टन मेटल अंदर डाला पूरा का पूरा। और इस जो पहले स्टेप था जिसमें सारी की सारी वैक्स आपने बाहर निकाल दी। अब जो वैक्स थी वो 2 मिट्टी के सांचों के बीच में है, एक ऊपर मिट्टी का सांचा, एक नीचे का सांचा है, तो अंदर सांचा बन गया। तो जब आपने वैक्स डाला तो वो रनर्स से सारी जगह पर चला गया। नेक्स्ट, और ये आपने फिर इसको बाहर निकाला गया। नेक्स्ट, और इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत मुश्किल रहती है क्योंकि ऊपर मिट्टी जमी हुई है पूरी के पूरी इसके ऊपर। नेक्स्ट, और इसको फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया गया। अभी पूरी फिनिशिंग वहाँ नहीं हुई है क्योंकि वी वर ऑल्सो गोइंग अगेंस्ट द टाइम। इसको चाहिए नेक्स्ट करें। और पूरा स्वामी मलाई, 2 मिनट, स्वामी पूरा का पूरा स्वामी मलाई वॉज फीलिंग प्राउड कि हमारा भारत मंडपम में जा रहा है। नेक्स्ट, ये इस तरीके से पूरे स्वामी मलाई से यहाँ तक 3.5 दिन में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस ये प्रोजेक्ट था, हमें करना था, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया जिसके थ्रू ये यहाँ पर आया। नेक्स्ट, सारे जगह पर हम लोगों को इसका सपोर्ट मिला, NHAI का सपोर्ट मिला, हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी किया गया। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रगति मैदान में आया। नेक्स्ट, और यहाँ पर इसकी फिर और फिनिशिंग शुरू हुई। नेक्स्ट, और इसको फिर नेक्स्ट यहाँ पर लगाया गया। नेक्स्ट, आज जाके देखिए आपको अच्छा लगेगा और ये एक आइकन बन गया है। तो यही मैंने बोला कि आर्ट शुड नॉट बी टेंटेटिव, आर्ट शुड बी लाइक मास्टरपीस ही बनाए। तो ये एक सिंगल कास्ट में इंक्लूडिंग दी रिंग ऑफ फायर जो है वो पूरा सिंगल कास्ट में बना हुआ नटराज है। शायद
इट्स सबसे बड़ा नटराज या जो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर जो होगा इंडिया का, वो यही होगा जो सिंगल कास्ट में पूरा बना है। पेडेस्टल को छोड़ दे, पेडेस्टल के ऊपर का पूरा इज इन सिंगल कास्ट। थैंक यू सर। व्हाट ए वंडरफुल टॉक। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के साथ हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आपने कीमती वक्त निकाला और बहुत ही कीमती जानकारी हम लोगों के साथ शेयर किया है, और आपके साथी आपके मित्र लोग आसपास हैं। और मैं चाहता हूँ जाने से पहले एक फोटोग्राफ आपके साथ यहीं बैठा के आपको हम लेना चाहेंगे। मनन, कोई स्टूडेंट